जय श्री राम और जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं जय साई दीपक का वीडियो जो होने जा रहा है तिरुपति के लड्डू के ऊपर। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। The attempt to bring it down to, after all, it may be 4 or 5 tankers. There is no, and it's nothing but politics because TDP wants to settle scores with YSRCP and vice versa. So it's nothing but politics. And 4 tankers, why make such a big deal about 4 tankers? And we don't even know whether those 4 tankers, it's actual samples, etc., etc. Correct. See, and let's also ask ourselves a larger question. Are you telling me that people in the political arena were not aware of the changing demographic balance over the last 10-15 years, both at the national level and at the state level? How many people actually bothered to act on it? And if you call yourself the guardian of Hindutva interest and Hindu interest, wouldn't you want to address that problem, or would you want to actually find a way of politically aligning yourself with someone who is not just actively invested in undercutting your societal roots, but who's also going to pose trouble for you politically speaking? Because frankly speaking, if this doesn't remain a Hindu majority country anymore, or even a Hindu majority state in different parts of the country, there is no question of any Hindutva party coming back to power. Kashmir is the best possible example. Okay, or even the Northeast is perhaps another example. Or West Bengal at this point is best possible example. In Assam, you're surviving simply because of the delimitation game being played. Yeah. But once the demographic imbalance outpaces even delimitation, there's nothing that you can do, right? So if looking at it from a political perspective, also there's a very clear incentive to act on each of these issues. I have no problems making the statement. Right. Let me also say bluntly, I don't think there is only one organization that represents Hindu interests across the country, because I know for a fact that at state level, there are different parties who are protecting that interest in different ways. Correct. You ask anyone, at least in Andhra Pradesh, they'll tell you, as on date, the pro-Hindu voice, at least the most pro-Hindu voice in Andhra Pradesh, is Pawan Kalyan. Well, fair point made. And my final question to you. Let's say this sample was taken on the 12th of July, it was submitted on the 17th and the report came out on 23rd. So let's say 11 days. Let it also, for the benefit of doubt of those who are claiming these are 4 containers and it's only the month of July, for 23 days, 3 lakh laddus per day, you can do the math, and we know that there should be nearly at least 65 to 70 lakh people who should be outraged, umbraged and absolutely worried whether or not they have actually had these kind of laddus. But are about 1 crore of people outraging? There are others who are worried that even for the prasadam for Ram Mandir, was it contaminated? We don't even know. I really don't care for how many days it has happened, because this is not a question of the extent of the problem. This is a question of the intent behind the problem. Okay? And the guts that and the audacity that somebody had, that he could get away with this, with perhaps the largest Hindu temple in the world and perhaps among the most well-known Hindu temples in the world. Okay? So for you to think that I can actually get away with it is not because you think, it's actually because you know for a fact there may not be too much of reaction, and even if there's a reaction, surely it's not going to be a Sartan se juda reaction. You know that for a fact. Yeah. Okay? And therefore, you know for a fact that the quality of reaction or the kind of reaction will change from community to community, which automatically emboldens quite a few people. So tolerance is not a virtue but a weakness here then? I'm sure that quite a few people are saying, is he asking us to hit the streets violently? I said this at the outset. No. But your reactions must at least create some kind of deterrence legally. At least do that. And make sure that such people are never brought back to power. Make sure that such people starve for funds. Make sure that such people do not have any access to economic opportunities when you know for a fact that they don't mean well for you. And whoever they may be, I make no exception. I mean this of people who are Hindus in name only, but who constantly act against Hindu interest. So because at the end of the day, there are quite a few people who may have Hindu names, but whose belief systems and who operate can be completely at loggerheads with Hindu interests. I know quite a few communist debates who appear on primetime television on a daily basis who spew venom at Hindus. Okay? Yeah. So this is not limited to one particular identity. And I've always said this, I'll simply quote Savarkar here. I think the problem in the Hindu community is its primary enemy comes from the Hindu community, comes from within the Hindu community. Sai Deepak, candid as ever, and you're calling a spade a spade. Always a pleasure speaking with you. Thank you for your time. Namaste. Jai Shri Ram. Namaste. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए,
कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि हमारा वीडियो आप जल्दी से जल्दी देख सकें और आपको पता चल सके कि ये एक इन्फॉर्मेशन आया है, ये एक वीडियो है जिसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है मेरे को। और ये वीडियो आप लोगों को जैसे दिख रहा था, ये जी साई दीपक और जो आनंद वो पहले टाइम्स नाउ में हुआ करते थे, अब CNN न्यूज़ 18 में है। और आनंद और मिस्टर जी साई दीपक बात कर रहे थे जो तिरुपति टेम्पल में जो लड्डू है, जो भगवान का प्रसाद है, जो नैवेद्य बना के भगवान को चढ़ाया जाता है, फिर लोगों को बांटा जाता है और वो लेते हैं, पैसे से लेते हैं, दान में भी देते हैं और ऐसे पैसे से भी लेते हैं लोग। तो फिर ऐसा एक लड्डू है और बहुत फेमस सा लड्डू है। बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं हमारे हिंदू भाई बहन हैं, वो नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया से, सारे इंडिया से जाके इस टेंपल में जाके अपना जो श्रद्धा के भाव के जाके उधर दक्षिणा करके और दर्शन करके ये लड्डू लेके आते हैं अपने परिवारजनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, सब लोगों के लिए लेके जाते हैं और बांटते हैं उन लोगों को, ताकि उन लोग को भी भगवान का जो नैवेद्य भगवान को चढ़ा है उस भोग में उनका भी एक हिस्सा और उनको पुण्य मिले। तो फिर ये एक कार्य है, ये एक रिलीजियस कार्य है। और इसमें जो TDP गवर्नमेंट है, इसको आने के बाद TDP गवर्नमेंट ने बोला था कि इधर जो भी डिस्क्रिपेंसी है ना, जो गलत चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि सब लोगों को पता था ये जो YSCP है, जो जगन मोहन रेड्डी का जो पार्टी है, इट्स अ क्रिप्टो क्रिश्चियन पार्टी। इनके जो बहुत सारे जो पार्टी फंक्शनरीज़ हैं और बहुत सारे जो पार्टी लीडर्स हैं, वो पूरी तरह ये जो क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट्स हैं ना, जो मिशनरीज़ हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। और उधर आंध्र प्रदेश में जा जाके उधर अंदर इंटीरियर्स में जाके लोगों को कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहे थे पिछले 5 सालों से। जब से इस इलेक्शन से पहले जब TDP नई पावर में था, तब से ये कोशिश कर रहे थे और ये पूरी बहुत हद तक सफल भी हो रहे थे उधर, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिश्चियन हो रहे थे उधर। और आप लोगों को पता होगा कि ये ऐसा देश है, ऐसा प्रदेश है हमारा आंध्र प्रदेश, जहाँ से सारे गली गली में आप लोगों को भगवान के क्षेत्र दिखाई दिए होंगे। और राम भगवान का तो बहुत अलग ही उधर का पूजा पद्धति है। उधर तो गानों में जो शादियों का गाना है, उनका जो रिवर है, सब में राम भगवान का बहुत अटूट अंग लगा रखा है उधर। और जो आप लोगों को अभी हमारा राम मंदिर बना है राम जन्म भूमि में, उधर बहुत सारे जो साउथ इंडिया के लोग गए हैं, वो तमिलनाडु के, और बहुत सारे जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग हैं, वो जाके उधर अपना दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको राम भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेम है। और जो कार सेवा हुआ था, उसमें बहुत सारे जो साउथ इंडियंस थे, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ देम वर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से थे, जो तेलुगु बोलते थे। पर इधर ये जो गलत चीज़ें हो रही हैं, इसलिए वो जो हिंदूनेस है उसको इरोड करने के लिए, खासकर ये जो बाहर के अमेरिकन कंट्रीज़, खासकर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के जो ये इवेंजलिस्ट्स हैं, ये मिशनरीज़ हैं, जो इंडिया को एक लास्ट बेस्टियन ऑफ ईवल बोलते हैं। इधर अभी भी ये जो बुत परस्ती है, जो आइडल वर्शिप चल रहा है, जो हमारे क्राइस्ट एंड सेवियर को मानना अभी तक पूरी तरह कोशिश जारी नहीं हुआ है, तो फिर वो एक ब्लॉट समझते हैं इसको। ये सेव नहीं होंगे ये लोग हेल में जाएंगे, ऐसा उन लोगों का मान्यता है, जो क्रिश्चियन लोगों का। ये जो इवेंजलिस्ट हैं, खासकर बहुत सारे जो क्रिश्चियन हैं, वो भी समझते हैं कि कैसे कन्वर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं हमें, जिनका पूजा करना है वो कर सकते हैं, हमको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो भी बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं। पर ये जो अल्ट्रा क्रिश्चियन लोग हैं ना, ये वेस्ट के अमेरिका के जो राइट विंग वाले लोग भी हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स भी हैं, वो भी ऐसे ही कन्वर्जन एक्टिविटीज़ को सपोर्ट इंडिया में करते हैं। और जगन मोहन रेड्डी तो आपको पता ही, वो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, उनका नाम रेड्डी है, पर वो उनका जो एक कार्यशैली है वो पूरी तरह एक क्रिश्चियन का है। वो जगन मोहन रेड्डी अपने आप को बोलते रहे, पर वो एक डैनियल मोहन रेड्डी बोल देना चाहिए उनको। रेड्डी तो लगाते रहना चाहिए, पर अपना जो ये जगन है ना, उसको हटा देना चाहिए।
और ये तो बिलीव करते नहीं है। इनकी जो माता है उनका वीडियो है जो एक्स में दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों को कि इनके जो फादर थे वो भी वोट लेने के लिए बस जाते थे हिंदुओं से वोट के लिए, अदरवाइज़ वो क्रिश्चियन है, उनको कोई बिलीव नहीं है हिंदू टेम्पल्स में, हमारे भगवान के टेम्पल्स में। तो फिर ये एक क्या चीज़ बात है और सर, क्या बात है बिल्कुल सर, सही किया है क्या बात है, ये बात है। जो टीडीपी अरे सर गवर्नमेंट क्या ने कि बात है। इनका जो भी कार्यशैली था उस स्पेशली ये तिरुपति में, क्योंकि तिरुपति इज़ अ वेरी बिग सेंटर ऑफ हिंदू आस्था का, बहुत बड़ा सेंटर है साउथ इंडिया में, और इधर ही सबसे ज़्यादा दक्षिणा और डोनेशन सब कुछ हिंदू इधर ही करते हैं, इसी टेंपल में सबसे हाईएस्ट है, वन ऑफ द रिचेस्ट टेंपल इन वर्ल्ड, दुनिया के सबसे रिचेस्ट टेंपल में से एक है। और इस टेंपल का महिमा तो आप लोगों को पता ही है, खासकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए बहुत ज़्यादा महिमा है इसके लिए। और उसको इरोड करने के लिए इन लोगों ने जो उधर तिरुमला मतलब इट्स टेंपल विच इज़ सिचुएटेड इन माउंटेन्स में सिचुएटेड है, छोटे छोटे हिल है, उन हिल्स में टेंपल सिचुएटेड है। और उन हिल्स में भी इन लोगों ने क्रॉस वास लगा के रखा था जब ये पावर में थे, और इनके जो फैमिली मेम्बर्स थे, कज़न थे और दूसरे थे, उन लोगों को बोर्ड का मेंबर बना के रख दिया था। और बहुत सारे जो क्रिश्चियंस हैं, जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं, जो अपना नाम चेंज नहीं करते हैं पर वो क्रिश्चियन होते हैं, वो उधर बैठ के कार्यशैली संभाल रहे थे। और उन लोगों ने ही ये जो ब्लास्फेमी है, ये जो सैक्रिलेज है, उन लोगों ने ही किया है कि इधर टेंपल में अनाप शनाप का प्रसाद बना के सब लोगों को खिला रहे थे, और लोगों को पता भी नहीं चल रहा था। उसमें सात्विक लिख के आ रहा था पर उसमें बीफ का मीट का अवशेष और ऑयल था, जो फिश ऑयल था, और लाड जो पिग का वो है ऑयल ऐसे कुछ वो भी था। तो फिर ये जो कार्यशैली है ये हिंदुओं के अगेंस्ट हो रहा था। और जो मिस्टर जे साई दीपक बोल रहे हैं कि हिंदू ही हिंदुओं के अगेंस्ट है, क्योंकि ये जो जगन मोहन रेड्डी का जो पार्टी है इसके बहुत सारे जो सपोर्टर्स अभी भी हैं वो हिंदू ही हैं, और उन लोगों को पता भी चल गया है तब भी वो उनका सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, वापस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उधर एक ये कल्ट लाइक लीडरशिप को कल्ट लाइक फॉलोइंग होता है, और उस कल्ट लाइक फॉलोइंग के ऊपर ये वोट दे देते हैं और अपना एलिजेंसेस ये वापस नहीं लेते हैं, क्योंकि इधर ये भगवान इन पॉलिटिकल लीडर्स को बना देते हैं। भगवान को भगवान बोलना मानना भूल चुके हैं लोग। अगर नहीं भूले होते तो फिर हिंदू एकता पूरी तरह पूरे देश में दिखाई दिया था, पर ये नहीं दिखाई दे रहा। और जो मिस्टर जे साई दीपक बोल रहे हैं कि ये अगर स्टेट गवर्नमेंट्स, खासकर ये जो भी एनडीए के स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में भी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रहे थे, इसलिए उधर के जो भूपेश बघेल थे उनको उखाड़ के फेंक दिया था और बीजेपी को लेके आ गए थे। उधर के आदिवासी लोगों ने ही ज़्यादातर जो बेल्ट बीजेपी कभी जीता नहीं था, आदिवासी बेल्ट, उधर बम्पर वोटिंग होके बीजेपी को जिताया छत्तीसगढ़ के लोगों ने, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोगों को लग रहा था कि इधर जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ का एक्टिविटीज़ है, हमारे बहुत सारे जो ट्राइबल लोगों हैं उनको इन लोगों ने क्रिश्चियन बना दिया था, पर बहुत सारे रेजिस्ट भी कर रहे थे इस कार्यशैली को, और उसको रेजिस्टेंस में वोट में दिखाया। और इधर भी आप समझिए बहुत सारे लोगों ने इसलिए भी वोट किया होगा क्योंकि ये जगन मोहन रेड्डी का ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो एक क्रिश्चियन अपीजमेंट है, उस अपीजमेंट को अगेंस्ट भी वोट दिया होगा। और ख़ासकर इसी टेंपल की बात नहीं है, उधर बहुत सारे राम के टेंपल हैं, बहुत सारे शिव जी के टेंपल हैं। उधर चैरियट्स लेके जो रथ है उससे लेके भगवान को दिखाया जाता था, क्षेत्र में पूरी तरह उनका यात्रा हुआ करता था भगवान की मूर्ति का, जो टेंपल्स थे उधर के। उधर 2-3 चैरियट्स थे, जो 2-3 रथ थे, उन रथों का जला के राख कर दिया था, और उसमें कॉन्स्पिरेसी इसी गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया था कि इनके जो फंक्शनरीज़ हैं उन लोगों ने किया है, क्योंकि उन लोगों को हिंदू मान्यता को बिल्कुल ख़त्म करना था। और उधर जो ये जो मिशनरीज़ हैं वही कर रहे थे ये सब। तो फिर अभी इसको स्टॉप करने की पूरी तरह जिम्मेदारी चंद्रबाबू नायडू को है, और उधर जो भी क्रिश्चियन लोग अभी बैठा के रख दिए उन सबको हटा के हिंदुओं को लगा देना चाहिए उधर देवस्थान बोर्ड में उधर, और बहुत अच्छा होगा तब तक। तो फिर वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।
और जय वेंकटेश्वराया, जय बालाजी और जय श्री राम, जय हिंद।